Hello friends, good morning. Welcome back to our online class. Today we are going to complete our remaining part of the lesson. Okay, which part is remain? It's answer the following question. Isn't it? Yes. Have you done your homework? Yes or no? Yes? Very good then. Please do studies regularly and complete your writing work also. Now let's start our today's work. Today is Thursday. Today's date is 22nd of October 2020. Unit 5, Lesson B, Circle. Answer the following questions. Okay? Question number 1. Mohini was sitting with whom? What is the meaning of question? क्वेश्चन का मतलब क्या है? मोहिनी किसके साथ बैठी थी? Answer is Mohini was sitting with her grandmother. मोहिनी अपनी grandmother के साथ बैठी थी. Question number 2. What did grandmother and Mohini draw first? Now tell me what is the meaning of this question? What is the meaning of this question? What did grandmother and Mohini draw first? Grandmother और मोहिनी ने पहले क्या ड्रॉ किया था? Answer is grandmother and Mohini drew a circle first. Grandmother और मोहिनी ने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया था. क्या ड्रॉ किया था? सर्कल. Question number 3. How did Mohini draw a balloon with a circle? मोहिनी ने एक सर्कल से बलून कैसे बनाया? Answer is Mohini added a zigzag line to the circle to draw a balloon. मोहिनी ने सर्कल को एक ऐसे zigzag लाइन ऐड किया और उससे क्या बनाया? बलून बनाया. कैसे बनाया? एक ऐसे सर्कल निकाला हुआ था, उसमें ऐसे जिगजैग लाइन ऐड किया तो उससे क्या बन गया? बलून. क्वेश्चन नंबर 4. What were the colors of the balloons that Mohini drew? What were the colors of the balloons that Mohini drew? मोहिनी ने जो बलून ड्रॉ किए थे उनके कलर कैसे थे, या फिर मोहिनी ने जो बलून ड्रॉ किए थे उनके कौन से कलर थे? द कलर्स ऑफ द बलून्स आर रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो. मोहिनी ने जो बलून ड्रॉ किए थे उनके कलर कौन से थे? रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो. क्वेश्चन नंबर 5. Name the things that Mohini drew with a circle. You have to tell that things that Mohini drew with the help of circle. आपको उन चीज़ों के नाम बताने हैं जो मोहिनी ने सर्कल से बनाए थे, सर्कल की हेल्प से, यानी कि सर्कल से ड्रॉ किए थे. मोहिनी ड्रू व्हील. मोहिनी ने क्या बनाया? व्हील. जो कि सर्कल से ही बनता है. व्हील जो है वो ऐसे सर्कल से बनता है ना, जस्ट लाइक दिस. ओके. आफ्टर दैट मून. मून भी ऐसे सर्कल से बनता है, राउंड शेप. आफ्टर दैट सन. सन भी ऐसे राउंड शेप सर्कल से बनता है कि नहीं? देखो, ये हो गया सन. आफ्टर दैट रैबिट. रैबिट भी कैसे बनता है? ऐसे सर्कल से. फर्स्ट ये स्मॉल सर्कल, उस बिग, आफ्टर दैट बिग सर्कल, 2 लॉन्ग ईयर्स, 1 टेल, बन गया रैबिट. उसके बाद एंड हर ओन फेस, और सबसे लास्ट में उसने क्या बनाया? अपना खुद का फेस बनाया. देखो, फेस भी हमारा राउंड होता है ना. देखो,
ये बन गया उसका फेस, है कि नहीं? हाँ, तो मोहिनी ने सर्कल की हेल्प से क्या क्या बनाया? व्हील, मून, सन, रैबिट एंड हर ओन फेस. ओके. See children, this is your today's homework. Okay, in notebook. And now we are going to start the workbook exercise of chapter circle only. Okay, now keep your notebook beside and open the workbook. Now open your workbook, page number 76, unit 5, lesson B, circle. Okay, who is the writer of this chapter? Manorama Jaffa. Okay, now write here day and date. Today's day is Thursday. Today's date is, you know it, 22nd of October 2020. Okay, now let's start. Let's start from new words. First word is soon, SOON, soon. It means quickly, QUICKLY, quickly. Quickly मतलब जल्दी से. Second one, REALLY, really. Really means truly. सच में, हम लोग कहते हैं ना really, सच में. Zigzag, 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 not straight. zigzag मतलब जो सीधा नहीं होता, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, उसको क्या कहते हैं? zigzag. CLAPPED, clapped. Hit both hands with noise. दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर मारना और उसमें से जो आवाज़ निकलती है या फिर आवाज़ निकालना, उसे क्या कहते हैं? क्लैप, यानी कि तालियां. जॉय, जॉय मतलब हैप्पीनेस, जॉय मतलब खुशी, हैप्पीनेस. SOMETHING, समथिंग, ELSE, समथिंग एल्स मतलब अदर थिंग, समथिंग एल्स मतलब कुछ और. ओके, रीडिंग इज फन. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1. What did the grandmother teach मोहिनी? ग्रैंडमदर मोहिनी को क्या सिखा रही थी? देन व्हाट विल बी द आंसर? आंसर क्या होना चाहिए? क्या होगा आंसर? टेल मी. सबसे पहले बताओ आंसर क्या होगा. ग्रैंडमदर ने मोहिनी को सबसे पहले क्या सिखाया था? याद है आपको? वेरी गुड. ग्रैंडमदर टॉट टू ड्रॉ अ बॉल एंड बलून. ग्रैंडमदर ने सबसे पहले मोहिनी को बॉल और बलून सिखाया था. नाउ हाउ मैनी थिंग्स डिड मोहिनी लर्न फ्रॉम हर ग्रैंडमदर? मोहिनी ने अपनी ग्रैंडमदर से कितनी चीज़ें, हाउ मैनी मतलब कितनी चीज़ें सीखी थी? नाउ टेल मी, अभी मोहिनी ने कितनी चीज़ें सीखी थी अपनी ग्रैंडमदर से? हाउ मैनी थिंग्स शी लर्न फ्रॉम हर ग्रैंडमदर? लेट्स काउंट टुगेदर. फर्स्ट उन्होंने क्या सिखाया था? बॉल, आफ्टर दैट बलून, उसके बाद व्हील, मून, सन, रैबिट एंड एट लास्ट हर ओन फेस. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. कितनी चीज़ें सीखी मोहिनी ने? हाउ मैनी थिंग्स शी लर्न? शी लर्न 7 थिंग्स फ्रॉम हर ग्रैंडमदर. कौन सी? सबसे पहले सर्कल से उन्होंने क्या बनाया था? बॉल. आफ्टर दैट her grandmother added a zigzag line to that circle and she made a balloon. और उसके बाद फिर मोहिनी ने क्या क्या सीखा उनसे? व्हील, मून, सन, रैबिट और सबसे लास्ट में अपना खुद का फेस. ओके, सो द आंसर विल बी, आंसर क्या होगा? मोहिनी लर्नड 7 थिंग्स फ्रॉम हर grandmother. Okay,
Question number 3. Did Mohini enjoy to make different things from the circle? क्या मोहिनी ने सर्कल से डिफरेंट थिंग्स बनाना जब सीखा तो क्या उसे उसमें मज़ा आया, उसने एंजॉय किया? यस, मोहिनी एंजॉयड। हाँ, मोहिनी ने एंजॉय किया। ओके, नाउ see this question number 4. You must have seen all the things given below. Here, name of some things are given. Put a mark. It means tick mark if the things is round. Otherwise, put a mark of cross. Now, here some names of some things are given. You have seen these all things. Do you? Let's read at first. Pencil, pencil. देखिए आपने पेंसिल? Yes, this is a pencil. eraser, eraser. eraser मतलब जिससे आप इरेज करते हो वो eraser. See, this is eraser. After that, wheel, wheel, wheel मतलब चक्का, पहिया, गाड़ी का, साइकिल का, मोटरसाइकिल का, 4 व्हीलर का. आफ्टर दैट शार्पनर, SHARPENER, शार्पनर. शार्पनर मीन्स दिस, जिससे हम पेंसिल शार्प करते हैं. एप्पल, APPLE, एप्पल. BALL, बॉल. BUS, बस, बस, स्कूल बस, ट्रैवल बस. PLATE, प्लेट, जिसमें आप खाना खाते हो वो प्लेट. ओके, यू मस्ट हैव सीन ऑल दिस थिंग्स. देखिए ना आपने ये सब चीज़ें. ओके, तो अभी आपको क्या करना है? यू हैव टू टिक राइट. यू हैव टू टिक दोज थिंग्स विच आर राउंड इन शेप. ओके, अभी आपको वो चीज़ के सामने टिक मार्क करना है जो शेप में ऐसे राउंड हो. और एंड द थिंग्स विच आर नॉट राउंड यू हैव टू मार्क लाइक दिस इन दिस बॉक्स. और जो चीज़ें राउंड नहीं हैं उसके सामने आपको ऐसे क्रॉस का मार्क करना है. ओके, नाउ सी फर्स्ट वन, पेंसिल. पेंसिल राउंड है? नो. तो उसके आगे हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे. इरेजर? नो, इरेजर रेक्टेंगुलर शेप. व्हील, व्हील है? यस. शार्पनर? नो. एप्पल? यस. बॉल? यस. बस? नो. प्लेट? यस. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. You have read what is the shape of a circle. आपने देखा होगा कि सर्कल का शेप कैसा होता है. सर्कल इज राउंड शेप. ओके, नाउ लर्न द फॉलोइंग शेप्स. अभी नीचे कुछ शेप्स दिए हैं, उन्हें हम रीड करते हैं. ओके, लर्न करते हैं, सॉरी. फर्स्ट वन, दिस इज TRIANGLE, ट्रायंगल. इसे क्या कहते हैं? ये शेप को क्या कहते हैं? ट्रायंगल. ट्रायंगल मतलब 3. ट्रायंगल मतलब 3. एंगल मतलब ये एंगल. इसे क्या कहते हैं? एंगल. कोना, कोन. क्या कहते हैं इसे? कोन. अभी ये डायग्राम में 3 कोन है. ट्राई मतलब 3 और एंगल मतलब कोन. अभी देखो, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड. तो कितने एंगल हो गए? 1 2 3. इसलिए इसे क्या कहते हैं? ट्रायंगल. ओके, नाउ सेकेंड वन, SQUAR इज स्क्वायर. क्या है ये? स्क्वायर. स्क्वायर मतलब चौकोन. इसमें 4 एंगल होते हैं. लेकिन व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ स्क्वायर? द 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर इक्वल. स्क्वायर की चारों साइड्स और साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. कोई भी कम नहीं होती, कोई भी
ज़्यादा नहीं होती। ये जो स्क्वायर है उसकी ये 4 साइड्स जो है वो सारी इक्वल होती हैं। ओके, नाउ रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किससे कहते हैं? ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल टू ईच अदर। देखो अभी इसका ऑपोजिट ये है, तो ये और ये दोनों साइड कैसी हैं? इक्वल है। एंड दिस वन, दिस बोथ साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। देखो अभी इसमें भी फोर एंगल है, इसमें भी 4 एंगल है, लेकिन दोनों के शेप में डिफरेंस है। इसकी 4 साइड इक्वल है और इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ओके, तो जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है उसे हम क्या? रेक्टेंगल कहते हैं। जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती है उसे स्क्वायर कहते हैं। जिसमें 3 एंगल्स होते हैं उसे ट्रायंगल कहते हैं। एंड लास्ट वन, ओवल, OVAL, ओवल। अभी देखो ये देखने में गोल है लेकिन पूरा राउंड है क्या? नो। सर्कल कैसे होता है? सर्कल पूरा ऐसे गोल होता है, लेकिन ये कैसे है? ये थोड़ा सा ऐसा है। ओके, है कि नहीं? सर्कल जैसा नहीं है, थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ओवल कहते हैं। ओवल क्या कहते हैं? ओवल शेप। फॉर एग्जाम्पल ओवल शेप का एग्जाम्पल एग। क्या है? एग। और सर्कल का और राउंड शेप का एग्जाम्पल बॉल। बॉल एकदम राउंड शेप में होता है ना, और एग यानी कि अंडा कैसे होता है? ओवल शेप होता है। ओके, नाउ टर्न योर पेज। Now look at this activity. Now identify these objects and write the shape of these objects. क्या करना है हमें यहाँ पे? Some objects are given. Can you see it? Okay. We have to write their shapes in the space provided. हमें क्या करना है? जो चीज़ें यहाँ पे दी हैं, जो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, उनका शेप कैसा होता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। नाउ टेल मी, ये पिक्चर किसका है? क्या है ये? दीज आर कुकीज, और वी कैन कॉल इट बिस्किट्स ऑल्सो। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द शेप ऑफ बिस्किट्स और कुकीज? सर्कल शेप। सो वी हैव टू राइट हियर सर्कल, CIRCLE, सर्कल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, क्या है ये? दिस इज एग। तो एग का शेप मैंने अभी बताया था आपको। व्हाट इज द शेप ऑफ एग? ओवल, OVAL, ओवल। नाउ दिस वन, दिस इज क्या कहते हैं इसको? दिस इज अ कलर ब्लॉक। ये खेलने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल और ब्रेन एक्टिविटी डेवलपिंग गेम है ये। ओके, तो इसका शेप कैसा है? 4 साइड्स इक्वल है, इट मीन्स ये क्या है? स्क्वायर। सो वी हैव टू राइट हियर स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज बॉल। बॉल का शेप सर्कल। नाउ दिस इज, क्या कहते हैं इसे? नेट ऑफ फुटबॉल कोर्ट एंड अदर। फुटबॉल का नेट ऐसे होता है ना, या फिर हॉकी, फुटबॉल, हॉकी। ओके, तो व्हाट इज द शेप ऑफ दिस? रेक्टेंगल। देखो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगल। एंड लास्ट वन, बर्थडे कैप, triangle. 1 2 3 angles are there and it looks like the triangle. तो ये कौन सा शेप है? ट्रायंगल। ओके,
circle, circle, oval, rectangle, square, triangle. Now move towards. Writing is fun. Join the dots and complete the alphabets. Now here some dots are given. You have to join the dots and complete that alphabets. Okay. This activity is for your homework. Okay. This one is also for your homework. Join the dots and complete the words. Here you have to complete the alphabets and here you have to complete the word. Let's read the word. CIRCLE, circle. LONG, long. CUBE, cube. SHORT, short. Okay. This activity is also for your homework. Making is fun. Make a cat from paper yourself at your home. Follow the simple instructions. Now, here one trick is given how to draw a cat. Okay, I will explain the instruction. You can draw it by your own. Okay. Now listen me carefully. Take a colored glass paper. You have to take, आपको एक कलर पेपर लेना है. Make 2 circles, first small and second big as shown. उस पेपर पे आपको पहले एक स्मॉल सर्कल बनाना है और उसके बाद एक बिग सर्कल बनाना है. कट दैम अलोंग द लाइन. और उन सर्कल्स को जैसे आपने ड्रॉ किया है वैसे लाइन के ऊपर कट करना है. टेक सम ग्लू एंड पेस्ट द स्मॉल सर्कल ओवर द बिग सर्कल एज शोन. और फेविकॉल, ग्लू यानी कि फेविकॉल या फिर गम कुछ भी, उसकी हेल्प से आपको छोटा सर्कल बड़े सर्कल के ऊपर पेस्ट करना है यानी कि चिपकाना है. नाउ कट 2 स्मॉल ट्रायंगल्स and 1 rectangle strip of some different colored papers. अभी कुछ अलग कलर के पेपर लेके आपको 2 ट्रायंगल कट करने हैं और एक रेक्टेंगल कट करना है. Paste these 2 triangles on the upper part of the small circle from behind and the rectangle strip at the bottom of the big circle. अभी देखो ये पिक्चर में जो ट्रायंगल आपने कट किए हैं वो स्मॉल सर्कल के पीछे से आपको पेस्ट करने हैं, चिपकाने हैं. और जो रेक्टेंगल आपने कट किया है उसे बिग सर्कल के बॉटम में यानी कि नीचे के हिस्से में उसे ऐसे चिपकाना है. टर्न द सर्कल्स टू द फ्रंट साइड. अभी उसे फ्रंट साइड यानी कि सामने की तरफ टर्न करना है. नाउ कट 6 थिन स्ट्रिप्स ऑफ सम डिफरेंट कलर पेपर एंड पेस्ट देम एज शोन. अभी क्या करना है, कैट की मूंछों के लिए ऐसे 6 आपको स्ट्रिप कट करनी है और उसे स्मॉल पेपर के फ्रंट साइड से, आगे की साइड से ऐसे चिपकाना है. विद द हेल्प ऑफ color sketch pen, draw eyes, nose and mouth of your cat. अभी कलर स्केच पेन की हेल्प से उसकी आईज यानी कि आंखें, नोज यानी कि नाक और मुंह मतलब माउथ मतलब मुंह आपको कलर स्केच पेन से निकालना है. योर कैट इज रेडी नाउ. देखो आपकी कैट क्या हो गई, रेडी हो गई. ओके. और हमने ये कैट किसकी हेल्प से बनाई, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट शेप्स. देखो नाउ दिस 2 आर ट्रायंगल्स, दिस 2 आर सर्कल्स एंड दिस वन इज रेक्टेंगल. ओके. See, fun with colors. Draw a circle around the animals, a rectangle on the things that have wheel,
a square around the things you wear and a triangle around the things you eat. Now color them. अभी आपको क्या करना है, और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, कैन यू सी, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, तो उन पिक्चर में जो एनिमल्स है उनको आपको क्या करना है, सर्कल करना है। एनिमल्स को क्या करना है, सर्कल करना है। और उसके बाद स्क्वायर अराउंड द थिंग्स यू वेयर, जो चीज़ें आप पहनते हैं, जो चीज़ें आप पहनते हैं उनको क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर। उसके बाद रेक्टेंगल, जो चीज़ों में व्हील्स लगे हैं, व्हील्स यानी कि ये व्हील, ये क्या है, व्हील, जिन चीज़ों में व्हील लगे हैं उनको आपको क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। ओके। एंड ट्रायंगल अराउंड द थिंग्स यू ईट, और जो चीज़ें आप खाते हैं उन्हें आपको उन पर आपको एक ट्रायंगल बनाना है। समझ में आया? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे। जो जो इनमें से एनिमल है उन्हें हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। फॉर दैट यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर मदर्स बैंगल। उसके लिए आप अपनी मम्मी की चूड़ी से सर्कल बना सकते हैं। चूड़ी की हेल्प से आप सर्कल बना सकते हैं। नाउ सी, इसको ऐसे सर्कल करना है। ओके, नाउ चिल्ड्रन लुक एट दिस पिक्चर्स। But due to lack of space, pictures are not covered properly. See this here, again here. ओके, कम जगह होने के कारण पिक्चर हम कवर नहीं कर पाए हैं, लेकिन यू कैन सी द डिफरेंस। अभी देखो, ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है, ये दोनों में डिफरेंस हम देख सकते हैं। स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, you also have to draw like this. Okay, now turn the page. And the last page of this exercise, draw 2 animals with the help of the shapes you have learnt and color them. Now here some space are given. You have to draw 2 animals. क्या करना है, यहाँ पे कुछ जगह दी है ड्रॉ करने के लिए। आपको वो स्पेस में 2 एनिमल्स ड्रॉ करने हैं, लेकिन कैसे करने हैं, विद द हेल्प ऑफ शेप्स। अभी जो हमने शेप देखे, अभी जो हमने शेप जो पढ़े हमने, जो मैंने आपको सिखाए, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ओवल, ये जो 5 शेप्स हमने अभी सीखे हैं, उन शेप्स की हेल्प से आपको 2 एनिमल्स के 2 एनिमल्स की पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। ओके, दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो फॉर योर होमवर्क। सेंड मी द पिक्चर्स। ओके, मुझे पिक्चर सेंड कीजिए। हियर वी कंप्लीटेड अवर चैप्टर सर्कल। वी कंप्लीट द explanation, reading, writing work depend upon that chapter. For example, new words, plurals, opposite words, missing letters, fill in the blanks, true or false, answer the following questions, match the pairs. Okay, and we completed this workbook exercise also. Okay, here we complete the chapter circle. In next chapter we will start our grammar portion. Okay, and now this grammar portion is the basic of grammar. Okay, so you have to learn that very carefully, because whole grammar is depend upon that part, which is the topic parts of the speech. ग्रामर का जो हमारा अगला चैप्टर है,
वो ग्रामर का पूरा बेस है। बेसिक नॉलेज मतलब क्या कहते हैं ना हम लोग उसको, जो पूरा मेन पार्ट जो होता है ग्रामर का वो उसमें है। इसके ऊपर बाकी का पूरा ग्रामर डिपेंड है। आगे आपको उसी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे डीप में, हम नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे। लेकिन फॉर द फर्स्ट स्टैंडर्ड आपको पार्ट्स ऑफ द स्पीच, ये वाला पार्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको अगर पार्ट्स ऑफ द स्पीच समझ में आया तो आगे का ग्रामर आपको इजी जाएगा। सो फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन you have to join the, or you have to see the video very carefully. Okay, thank you, bye and have a nice day.